नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे कि अप्रेजल के बाद ईआईए के प्रोसेस में और क्या-क्या होता है। सो टुडे विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर अप्रेजल इन एन ईआईए प्रोसेस। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So environmental impact assessment part 4, what happens after project appraisal. Grant or rejection of prior environmental clearance. So the appraisal process which I discussed in my previous lecture is called prior environmental clearance. That is, you have to take environmental clearance before or prior to you start your project. So it is called, so this stage after expert appraisal is called grant or rejection of prior environmental clearance. The process of environmental clearance is bound to be completed within 45 days of receipt of recommendations from the expert appraisal committee or the state level expert appraisal committee by the impact assessment agency. Sometimes when the impact assessment agency disagrees with the recommendations of the expert appraisal committee or the state level expert appraisal committee, it resends the report for reconsideration and it states the reasons why it is resending the report back to the expert appraisal committee for reconsideration. The expert appraisal committee or state expert appraisal committee reconsiders the observations of the impact assessment authority, furnishes its views and sends the report back to the impact assessment authority within a further period of 60 days, that is 2 months. Now this process is also time bound. The applicant is intimated of this decision. So applicant is always kept in the loop and he or she is told like your decision is being reconsidered. Once the report comes back, I mean your decision on the EIA is being reconsidered. Once the report comes back to the impact assessment authority, the decision of the impact assessment authority is deemed final and is conveyed to the applicant within the next 30 days or within 1 month. Okay. And if the impact assessment authority fails to convey its decision to the applicant, the recommendations, denial or approval of the project of the impact expert appraisal committee or the state level expert appraisal committee are considered final by the applicant. So if the impact assessment authority fails to convey anything within the time frame, then the recommendations of the expert appraisal committee or state level expert appraisal committee are considered final by the applicant. Validity of environmental clearance. This is also important. So for how long is your environmental clearance valid? एक मिनट, इस स्लाइड को मैं हिंदी में जरा दोहरा दूं। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो प्रोसेस होता है वो 45 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी या स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को दी है उसके 45 दिन के अंदर आपको बता देना है इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को कि आपका प्रोजेक्ट क्लियर हुआ या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो है उसको एक्सपर्ट अप्रेजल का या स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का फैसला सही नहीं लगता है और विचारों का मतभेद वहां होता है। ऐसे में जो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है वो प्रोजेक्ट का जो डिसीजन जो रिकमेंडेशन होता है उसको वापस एक्सपर्ट्स के पास भेज देती है रिकंसिडरेशन के लिए और उनके पास फिर एक्सपर्ट्स के पास 60 दिन का वक्त होता है जब उनको फिर से रिकंसिडर करके और फैसला अपना इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को देना होता है और एप्लीकेंट को बता दिया जाता है कि आपके एप्लीकेशन पर ये प्रोसेस चल रहा है इसलिए डिले हो रहा है, 60 दिन और लगेंगे। और एक बार जब इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास रिपोर्ट वापस आ जाती है फिर वैसे एक्सपर्ट्स के द्वारा के थ्रू एक्सपर्ट्स के थ्रू या तो फिर उसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी उस प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट्स से अग्री करे डिसएग्री करे जो भी फैसला देगी अब वो फाइनल होगा और अब उसमें किसी को उसको बदला नहीं जा सकता। तो इसको फिर से मैं दोहरा दूं अगर आप समझ नहीं पाए। कभी कभी इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी डिसएग्री करती है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी से और ऐसे केस में इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी रिकंसिडरेशन के लिए फाइल को वापस भेजती है और एक्सपर्ट्स उसको पढ़ के स्टडी करके अगर कुछ संभव है बदलाव करके फिर वापस इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास भेजते हैं और ऐसे में अब इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो फैसला लेगी वही आखिरी फैसला होता है। If the impact assessment authority fails to convey its decision to the applicant और अगर impact assessment authority जो एप्लीकेंट है प्रोजेक्ट एप्लीकेंट है उसको कुछ भी कन्वे नहीं कर पाती है तो ऐसे में जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का जो फैसला होता है वही आखिरी फैसला मान लिया जाता है।
वैलिडिटी ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कितने समय तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस वैलिड रहता है. Validity of environmental clearance is for a period between the day clearance is granted till the day all construction or operation activity for which the clearance has been sought is completed. And talking in terms of maximum time frames, it is 10 years for a river valley project, 30 years for a mining project, 5 years for all other projects, and for area development projects and townships, the validity may be extended for another 5 years if an application has been made before the expiry of the validity of prior environmental clearance. तो वैलिडिटी जनरली अगर किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए हमने वैलिडिटी ली है, जब तक प्रोजेक्ट लग नहीं जाता तब तक वैलिडिटी होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 साल तक उस प्रोजेक्ट को लगाते रहें, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए आपने क्लियरेंस लिया तो प्रोजेक्ट भी आपको टाइम पे लगा लेना है. और इसीलिए वैलिडिटी का एक मैक्सिमम पीरियड रखा गया है कि रिवर वैली प्रोजेक्ट है तो उसको बनने में समय लगता है, तो उसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वैलिडिटी होगी 10 साल. माइनिंग का जो प्रोजेक्ट होता है वो काफी लंबा चौड़ा उसका एरिया होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसके एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वैलिडिटी होती है 30 साल. और बाकी सभी प्रोजेक्ट्स के क्लियरेंस की वैलिडिटी होती है 5 साल. 5 साल में आपको जिस चीज के लिए आपने क्लियरेंस लिया है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए क्लियरेंस लिया है, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस लिया है, तो 5 साल में वो सारा काम कंस्ट्रक्शन खत्म होकर ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए, वरना क्लियरेंस आपका चला जाएगा, उसकी एक्सपायर हो जाएगा. फॉर एन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो टाउनशिप वगैरह जो बनते हैं, उनके लिए वैलिडिटी 5 साल की होती है. लेकिन 5 साल की वैलिडिटी खत्म होने से जस्ट पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया वैलिडिटी के रिन्यूअल के लिए, तो और 5 साल की वैलिडिटी आपको मिल सकती है. यही है पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग एंड सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट. इसमें क्या होता है? इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रोजेक्ट एप्लीकेंट टू सबमिट अ हाफ ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन June 1 and December 1 of each calendar year. This report is to ensure that the terms of reference, that is TOR, as determined during the scoping process are being adhered to, that is being followed. These compliance reports, along with the final EIA report and terms of reference on which the environmental clearance was granted, are public documents and can be made available to any person upon a written request. तो जो एक बार environmental clearance मिल गई, आपने काम शुरू कर दिया, अब हर 6 महीने पे, जब तक भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो पीरियड है, जैसे 5 साल के लिए आपको क्लियरेंस मिला है, तो 5 साल तक हर 6 महीने पे आपको रिपोर्ट जमा करनी है, 1 जून को और December 1 को हर साल. और उसमें ये दिखाना है कि जिन शर्तों पर, जिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला था, वो शर्तों का आप पालन कर रहे हैं. और जो भी ये रिपोर्ट्स हैं, EIA रिपोर्ट है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान रिपोर्ट है, या जो हर 6 महीने पे आप जमा करते हैं वो रिपोर्ट्स हैं, वो सब किसी भी पर्सन को, किसी भी मनुष्य को अगर उसने लिखित में मांगा है तो उसको वो उपलब्ध कराई जाएंगी. पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ये सब. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. कैसे? अ प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस granted to an applicant for a project or activity may be transferred to another legal entity for the same project during the validity period for which environmental clearance is granted. For this, applicant or transferor will have to give a written no objection letter to the impact assessment authority. In this case, the validity period of the environmental clearance and the terms of reference of environmental clearance for the project do not change. Expert appraisal committee or state level expert appraisal committee are not a party here. They are not concerned of this transfer process. This matter is between the project applicant, the new legal entity or project owner and the impact assessment authority. तो ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर मान लीजिए 5 साल के लिए हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है, उस 5 साल में हमारी जगह वो प्रोजेक्ट अब कोई और हैंडल कर रहा है, तो हम एक नो ऑब्जेक्शन लेटर लिख देंगे इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है अब हम मेरे से हटके उस पर्सन को दे दिया जाए. तो बेसिकली जो क्लियरेंस होता है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है. तो प्रोजेक्ट का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है और प्रोजेक्ट जितने साल के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है उसको, उसमें से कुछ भी बदलाव नहीं होता है, बस हाथ बदल जाते हैं और सब कुछ वही रहता है. और इसमें एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का कोई लेना देना नहीं होता है. अच्छा है, EIA के बारे में हमने आज जो भी बातचीत की वो आपको समझ में आ गया होगा. EIA से जुड़े सभी सवालों का जवाब मैंने अपने इन 4 लेक्चर्स में दे दिया है. इंट्रोडक्शन टू EIA, हिस्ट्री ऑफ EIA, स्टेजेस ऑफ EIA एंड पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है. So I hope whatever we discussed is pretty clear to you. I have explained in detail in all my previous lectures and this one about EIA
And please let me know if you have comments or questions. Please do like and subscribe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.